Hello everyone, welcome back. So today we are going to start our next topic, that is conservation of mechanical energy. Okay, so in this topic, first of all, we are going to revise our previous topic lecture, that was potential energy. So what we have learnt about the potential energy, we have learnt that the potential energy is a relative energy. The relative energy means we have to take the reference point for the we have to consider the reference point for the calculation of the potential energy, because with the change in reference point, the potential energy will also change. Second point was the for the potential energy to generate, we need conservative force field. What are the conservative forces? And conservative forces are like electric field force or gravitational field force. All these are conservative, but what are the example of non-conservative? The frictional force or any type of viscous force or resistance force. All these types of forces are a non-conservative force field. And the third point was that the formula of the potential energy, we can calculate its value by mgh, where h is the height from the reference point. Okay, now let's start with the conservation of mechanical energy. What is the conservation of mechanical energy? It says that the total energy, mechanical energy, is a total energy, that is the combination of kinetic energy, that is combination of kinetic energy and the potential energy, is equals to total energy E. Okay, so it says that in an isolated system, the total energy of the system remains conserved, or it does not neither it is destroyed, nor it can be transformed. Sorry, nor it can be generated, but can be transformed from one form to another, that is from kinetic to potential it can convert, and similarly from potential to kinetic also it can convert. So at any point, if we have to calculate the total energy, we will say the total energy E will be the sum of kinetic energy at that point plus potential energy at that point. Now let us start with the derivation. Suppose that we have considered this ball. We have taken a ball which is at a height of h from the ground. We have taken ground as the reference point. Okay, so this is our ground. So this is our ground, and we have taken this ball at a height of h. Okay, at a height of h. So when we are raising the ball in the gravitational force field to a height h, then we know that there must be a potential energy stored in this potential energy stored in the ball. Okay, so this potential energy can be calculated by the mgh. But since there is no velocity, no motion in the body, we will say its kinetic energy is zero. So its total energy has become kinetic plus potential, that is mgh. Okay, it has become mgh. This is our total energy. Similarly, at point B, if we have to calculate at point B, then what is at point B? Sorry, at point B, we have seen that the ball has reached in a middle position, where some potential energy is also there and some kinetic energy is also there, because the ball is continuously moving with a velocity. Suppose that at point B, the velocity of the object is Vb. Vb is the velocity of the object. So we will say total energy Eb will be equals to kinetic plus potential energy at that point. Now if we calculate the kinetic energy, we will say half mvb square, and potential energy will be mg h minus x. We have taken h minus x because to calculate the potential energy, we have to take the height from the reference point, and reference point here is the ground. So we will say the total height we are taking is h minus x. So its potential energy has become mg h minus x. Now we don't know the value of vb square, so we have to calculate the vb square value. So in this case, we can apply the third equation of motion. Here, since the ball is dropping in the gravitational force field, we will say its initial velocity u will be 0. U is 0 since the ball
since the ball is being dropped is being dropped in the gravitational force field, in the gravitational force field. Now remember that the gravitational force field is a conservative force field. Okay, so we can say Vb square is equals to u square plus 2gx, or Vb square is equals to 2gx. Since we have taken 2gx, why we have taken x not h minus x? Because at point B the ball, this ball has traveled this much height only, and this value is x, this value is x, so we have taken x as the height. Okay, so we will say Vb is equals to Vb square is equals to 2g into x. Now काइनेटिक एनर्जी हैज बिकम हाफ ऑफ एम, वी स्क्वायर की जगह हम वीबी स्क्वायर की जगह 2gx पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mgx. नाउ काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई, दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी ईबी विल बी इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस एक्स. इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो mgx और mgx कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ईबी इज इक्वल टू mgh, यानी कि बी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो mgh के बराबर है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके बराबर थी. नाउ वी हैव सीन, वी आर टेकिंग द थर्ड केस, दैट इज द बॉल हैज बीन रीच्ड एट पॉइंट सी. the ball has been reached at point C. Suppose that this was our ground level and the ball has been reached at this point. So this is point C and this is point A. Now when the ball was dropping, its initial velocity was 0, and when the ball has hit the ground, at the time of hitting, let us say that the speed of the velocity speed of the ball is, or velocity of the ball is vc. So the ball is traveling to a distance of h, the ball is traveling to a distance of h, and with the velocity, its final velocity will be vc. With this velocity it is hitting the ground. Okay, so now if we have to calculate the potential, if we have to calculate the total energy, we will again do the same thing, kinetic energy plus potential energy at point C. But since the ball is reaching here, we can see that the difference of height between the ball and the ground is 0, है ना. इस पॉइंट पर आकर जो h की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 0. यहाँ पर अब h की वैल्यू 0 हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे बॉल और ग्राउंड के बीच में कोई भी हाइट नहीं बची. तो जब कोई हाइट नहीं बची तो उस केस में हम कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नाउ if its potential energy has become 0, then we can say the total energy possessed at the point C will be equal to its kinetic energy. So let us say the velocity at point C is vc square vc, then the kinetic energy will be half of mvc square. Similarly, if we have to find out the value of vc square, we will use the third equation of motion. Here u is equal to 0, v final velocity is vc, and total distance covered is h, and it is the motion under the gravitational acceleration. So it is the motion under the gravitational acceleration. So we will say, we will use a is equals to g. So like this we have come to the result that kinetic energy kc is equals to mgh. Now if we are putting this value in the total energy form, we know that the total energy is also mgh. Now from these three equation first, second and third, we can conclude that the total energy remains same and is equals to mgh. That is the conservation law of conservation of mechanical energy. Okay, now next topic is relation between the kinetic energy and the momentum. So we know that the momentum P is equals to, it is denoted by mv, P is denoted by mv, and kinetic energy is denoted by half of mv square. If in this kinetic energy, if I am going to divide and multiply by the m, there will be no change because I am multiplying the same thing and dividing also.
now this m is multiplied, this m is multiplied by this, so it will become m square v square, and this will I am taking out, taking common with this m I am taking out of the bracket, so it has become 1 upon 2m and m square v square, or simply mv ka whole square. So this mv whole square is known as p, that is momentum. So I can write k is equals to p square by 2m. This is the relation between the kinetic energy and the momentum. Okay, so we will remember this formula, that kinetic energy is equals to p square by 2m. Now let us see a question based on this formula. Question says that if the linear momentum of a body is increased by 50%, it says the linear momentum has been increased by the 50%, then what will be the percentage by which the kinetic energy is increasing? कितने परसेंटेज से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगी? तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो इनके बीच में रिलेशन था, दैट इज के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m था, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m था, के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पी इसका मोमेंटम है। अब ये कह रहा है कि 50% जो इसका मोमेंटम है वो चेंज हुआ, तो न्यू मोमेंटम कितना हो गया? हमने कहा कि पी डैश की जो वैल्यू है ये हमने मान ली, पी के अंदर इनिशियली जो मोमेंटम पी था उसमें 50% यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आई 1.5 पी। नाउ दिस वैल्यू वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, वी विल से न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के डैश इक्वल टू पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m। पी डैश की वैल्यू थी 1.5 पी, इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2m। अब 1.5 का स्क्वायर जब खोलते हैं तो ये होता है 2.25 और पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, बट ये जो पी स्क्वायर बाई 2m आया है ये क्या है? ये इनिशियली के बराबर है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि के डैश इज इक्वल टू 2.25 के। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया 2.25 माइनस के, दैट इज 1.25 के, और सिंपली इसको 1.25 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमें पता चलेगा कि 125% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप मोमेंटम के अंदर 50% का इंक्रीमेंट करते हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना होगा? 125% का इंक्रीमेंट होगा। ओके ओके Next is conservation of energy. It is a simple statement that states that in an isolated system, ध्यान रखना हमने कहा है ये isolated system, यानी कि isolated system ऐसा सिस्टम होता है जिसका सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कि सराउंडिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा उससे कोई मतलब नहीं है, जो सिस्टम के अंदर अंदर है सिर्फ उन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से कोई ना कोई इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो ये कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी created the total energy remains the constant। ये कह रहा है in an isolated system the total energy remains unchanged or constant। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि energy neither can be created nor can be destroyed but can be transformed from one form to another। क्लियर है? यहाँ तो एनर्जी कह रहा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कौन कौन से जो एनर्जीज हैं वो फॉलो कर सकती हैं? जो हीट है वो फॉलो कर सकती है, लाइट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बट ये जो हीट लाइट है इनके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हीट और लाइट है ये लो ग्रेड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी होती है, पोटेंशियल वर्क एनर्जी, वर्क जो है वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी लो ग्रेड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को अलग से हम देखें तो ये भी हाई ग्रेड बेसिकली है तो मैकेनिकल में ही, लेकिन अगर हम अलग से बात करें तो भी ये हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। अब हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी क्या होती हैं इसके लिए हमने डिफाइन किया हुआ इसको कि those energy which can be completely converted into one form to another are known as high grade energy, while those form of energies which cannot be converted completely into one form to another, जैसे हीट का सारा कन्वर्जन हम वर्क के अंदर नहीं कर सकते, हीट का टोटल कन्वर्जन हम
वर्क में नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, हीट इंजन का यूज किया जाता है, हीट इंजन का यूज किया जाता है हीट से वर्क आउटपुट निकालने के लिए। इसी तरीके से हम वर्क प्रोवाइड करके हीट जनरेट करना चाहें या एनर्जी जनरेट करना चाहें तो वो भी कंप्लीट कन्वर्जन उसका पॉसिबल नहीं है, इसका कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कंप्लीट कन्वर्जन अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि ये लो ग्रेड एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल का हम कंप्लीट कन्वर्जन कर सकते हैं काइनेटिक के अंदर, और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का भी कंप्लीट कन्वर्जन कर सकते हैं पोटेंशियल के अंदर। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ये चीज देखी भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है ये हाई ग्रेड एनर्जी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज और फोर्स फील्ड्स। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होते हैं उसको हम चेक करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज जीरो। सपोज करो हमने कोई क्लोज पाथ लिया हुआ है, अब इस क्लोज पाथ में कोई फोर्स F है वो काम कर रहा है, ये F इसके ऊपर लग तो रहा है लेकिन जितना इसने वर्क डन किया वो अगर जीरो हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि द फोर्स एक्टिंग इज कंजर्वेटिव। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, हमने क्या कहा, जैसे सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि हमने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वापस से पॉइंट ए पर आ गए तो उस कंडीशन में होगा क्या, एफ इंटू डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये वर्क डन जीरो हुआ। लेकिन अगर सपोज करो हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करता है इसके टोटल पाथ के ऊपर। ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क आउटपुट है ये जीरो नहीं है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स था उसका जो वर्क आउटपुट है दैट इज जीरो। So this applied force will be conservative but this frictional force will not be conservative। ठीक है, सेकंड कहता है द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट्स। अभी हमने बताया यहाँ पे कि इसका इनिशियल पॉइंट, जैसे ये क्लोज लूप था, इसका इनिशियल पॉइंट ए था और एंड पॉइंट भी ए ही है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता, जैसे कि फ्रिक्शन के केस पे अभी हमने देखा था, फ्रिक्शन के केस में देखा था कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये सपोज करो कि ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम इसको, ये नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करो ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और इस बॉल को, ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है। अब आने के लिए हमने इसके तीन रास्ते बनाए हुए हैं। पहला रास्ता तो ये है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट यहाँ से नीचे तक आ सकता है। दूसरा इसका रास्ता ये है, ये इस तरीके से घूम के आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, ये सेकंड पाथ हो गया इसका। और थर्ड पाथ हम इसका बना सकते हैं इस टाइप से कि भाई ये इस टाइप से आ जाएगा, तीसरे किसी पाथ से घूमते घामते ये आ जाए। अब देखो ये वाला जो पॉइंट बी है ये नीचे की तरफ है और ये जो बॉल आ रही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ये कहाँ पर काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में काम कर रही है। तो हम कहेंगे कि जब ये बॉल को हम छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये कहता है कि चाहे पाथ 1 से आए, चाहे पाथ 2 से आए, चाहे पाथ 3 से आए, इनका टोटल जो वर्क डन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा तीनों के लिए, सेम रहेगा तीनों के लिए। तीनों कंडीशन में इसका जो टोटल वर्क डन रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट बी है, तो ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। क्लियर है। तो दोज फोर्सेज बाय विच द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट।
तो ये सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। थर्ड कहता है कि अगर हम फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा अगर हम इसे किसी भी स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकें। स्केलर क्वांटिटी क्या है? ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर है। तो ये कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम कर दें तो वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो F इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी कहते हैं या सिंपली एनर्जी ग्रेडियंट भी कहते हैं, एनर्जी ग्रेडियंट। तो ये कह रहा है कि एनर्जी ग्रेडियंट की वैल्यू फोर्स के इक्वल होती है। यहाँ पर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कहेंगे कि हमने स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को डिराइव किया, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। क्लियर है? The total mechanical energy will remain conservative if the force or by which work has been done is conservative। क्या कह रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव होगी इफ द फोर्स, जो जिस फोर्स से हमने वर्क डन किया है वो कंजर्वेटिव हो। क्लियर है? तो जो हमने ऊपर में लॉ पढ़ा था, कंजर्वेटिव लॉ ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कब होगा पॉसिबल? जब उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।